Hello friends, good morning. I welcome all of you again to our video lecture. Dear students, I hope all of you remember that in this online video education, we are learning right now class 9th mathematics, and we have completed 3 chapters together. One was 14th, statistics, one was 12th, Heron's formula, one was 15th, probability. These 3 chapters we have completed. Today we are going to start now 4th chapter, and that is chapter number 11 as per the textbook, that is constructions. Before I start this chapter, let me just remind you that I think you must be knowing that since last week, now your videos are not coming from the personal teacher's YouTube channel. They are coming on the YouTube channel of our school. So whenever you are listening to this video, do one thing first of all. Just go back to YouTube, subscribe the button, press the button of subscribe of our school channel, so that each and everyone gets the benefit of it. And also the school's channel goes to so many persons and becomes famous. So I request you to first of all like and subscribe this YouTube channel and share it with your juniors and seniors who have not subscribed yet. The main benefit of subscribing the video is you will get the notification as soon as the new video is uploaded. So that is the biggest benefit. You will not miss any video. So please subscribe right now. Okay? After subscribing the button, come to this video again. So let's start this chapter number 11, construction. And I think you know, you have done few constructions in class 8. To do more construction, you must be having rounder, scale, pencil, eraser, all these geometric instruments with you. So before you start, if you don't have it, pause the video, just go back to your cupboard or your school bag, bring out that geometry compass box, make sure you have everything with you, rounder, scale, eraser, pencil, everything. Once you have it, again restart the video. Okay? So I hope all of you are having that one. So assuming that, I am starting this video. Dear students, there are 2 exercises in this chapter, 11.1, 11.2. 11.1 is very basic, and 11.2 is a kind of a different exercise where big constructions are there. 11.1 questions are very small, 11.2 questions are big. But for 11.2, for doing 11.2, you must be knowing 11.1. If you are not aware with 11.1, you will not be able to do 11.2. Also, 11.1 is important from the point of view of 10th also, standard 10th. Because in standard 10th, there are so many constructions. In each and every construction, this 11.1 basic constructions are useful. Okay? 11.2 exercise is not useful in class 10. It is only for class 9. But point 1 exercise is very useful for class 10 also. So remember very properly. Now before we start this exercise 11.1, यहाँ कुछ 3 चीजें ऐसी एक्सरसाइज से पहले जैसे एग्जाम्पल्स दिए होते ना, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, उस तरीके से इनको एग्जाम्पल तो नहीं कहेंगे, कंस्ट्रक्शन ही कहेंगे. तो एक्सरसाइज 11.1 से पहले कंस्ट्रक्शन 11.1, कंस्ट्रक्शन 11.2 एंड कंस्ट्रक्शन 11.3 भी है. इन 3 के बारे में जानना थोड़ा जरूरी है. ये हो जाए फिर आप आगे बढ़ पाएंगे. ओके? तो ये 3 कंस्ट्रक्शन का मैं आपको ऊपर से आइडिया दे दूं क्या है ये, क्योंकि ये आगे एक्सरसाइजेस में काम आएंगे, दोनों एक्सरसाइजेस, और ऑलमोस्ट हर एक्सरसाइज में इनकी जरूरत पड़ेगी. तो इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दूं, फिर आगे बढ़ते हैं. कंस्ट्रक्शन 11.1 ये एक्सरसाइज नहीं है, a kind of an illustration.
Construction 11.1 says bisector of an angle. मतलब आपको कोई भी एक एंगल दिया हो, मान लीजिए 70 डिग्री, कोई भी, कितने भी, उसका बाइसेक्टर मींस दो इक्वल हिस्से करने हो, 70 हो तो 35 सो इफ यू वांट टू डिवाइड वन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, तो वो कैसे किया जाता है कंस्ट्रक्शन में, तो ये सीखना है, ये आगे एक्सरसाइज में काम आएगा। तो मैं रैंडमली, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, दीज आर ओनली फॉर प्रैक्टिसेस, 11.1 के लिए आगे जाने के लिए, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्योंकि यहाँ जो 11.12 से ये दी है क्वेश्चन एक्सरसाइज यहाँ पे टेक्स्ट बुक में, वहां कोई फिगर नहीं दिया है, जनरल सिखाए हैं, तो यहाँ से सीखिए, इसकी एप्लीकेशन एक्सरसाइज में आएगी। तो मान लीजिए ये रैंडम ड्राई है, रफ ड्राई है, तो आपको क्या करना चाहिए, कोई एक एंगल ड्रॉ करना चाहिए, फेयर बुक में करिएगा, फेयर बुक में कोई एक एंगल ड्रॉ करना चाहिए। मतलब मान लो मैंने ये एंगल ड्रॉ कर लिया विदाउट मेजरमेंट, एक एंगल ड्रॉ हो गया विदाउट मेजरमेंट, अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। अब मान लीजिए इसके दो इक्वल हिस्से करने हैं, तो आपको करना ये होगा कि आपको अपना राउंडर यहां रखना है, यहाँ पे राउंडर का जो पॉइंट होता है वो यहाँ रखना है, और राउंडर में पेंसिल तो लगी होगी ऑब्वियसली, उस राउंडर को रैंडमली कितना भी खोलना है, नो फिक्स मेजरमेंट, थोड़ा सा खोल लिया, बहुत ज्यादा भी नहीं खोलना है, बहुत कम भी नहीं खोलना है, थोड़ा सा एवरेज टाइप खोल लिया, नो पर्टिकुलर मेजरमेंट, थोड़ा सा खोल लिया ऐसे, और यहां पे रख के एक ऐसे आर्क लगा लिया ऐसे। अब ये हर क्वेश्चन में मैं ये वर्ड बोलूंगा आर्क, इसका मतलब पता होना चाहिए व्हाट इज आर्क। आर्क इज अ पार्ट ऑफ ए सर्कल, जैसे फुल सर्कल होता है, तो सर्कल का ही कोई पार्ट, थोड़ा सा हिस्सा, इतना सा, उसको बोलते हैं आर्क। तो ईच एंड एवरी सम ये बात चलेगी, आर्क लगाओ, तो पता होना चाहिए व्हाट इज आर्क। ओके, तो यहां राउंडर रखा, आर्क लगा दिया, राउंडर कितना खुला था, नो मेजरमेंट। अब इस आर्क ने जहां दो पॉइंट कट किया, ये दो पॉइंट्स को नाम दिया करते हैं, ये पॉइंट C था मान लीजिए, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट R। अब इस Q पॉइंट पे राउंडर रखना है, Q पॉइंट, और एक आर्क लगाना है यहां हवा में ऐसे। वापस राउंडर कितना खोलेंगे, तो पहले जितना खोल के रखा है उतना ही भले पड़े, डोंट चेंज इट, चेंज करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट डोंट चेंज इट, लेट इट बी एज इट इज। फिर राउंडर रखेंगे आर्क से, उतना ही खुला रहने दो, नो चेंज, एक और आर्क लगाओ। आप पाओगे कि जो अभी अभी दो आर्क लगाए वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, दिस पॉइंट, गिव दिस पॉइंट नेम S। अब इस P से लेके इस S को स्केल से ज्वाइन कर दो, समथिंग लाइक दिस। तो हो गए एक एंगल के दो हिस्से, दिस वन एंड दिस वन। अब आप चाहो तो प्रोटेक्टर से मेजर कर सकते हो, प्रोटेक्टर मेजर करना आप जानते हो, यहां रखना पड़ता है ऐसे प्रोटेक्टर, तो यहां रखा, पहले वो ओरिजिनल नाप लो, ओरिजिनल कितना है, मान लो ओरिजिनल 50 था फॉर एग्जांपल, हमने तो बिना मेजरमेंट किए ड्रॉ किया था, तो अगर वो 50 था तो फिर ये जो पहला पार्ट मेजर करोगे तो वो भी 25 आएगा, और ये दूसरा पार्ट मेजर करोगे यहाँ ऐसे राउंडर रख के, वो भी 25 आएगा। सो एक 50 एंगल के दो हिस्से हो गए, 25। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ हाउ टू bisect an angle, how to divide an angle into two equal parts. This is the process. This will be useful in upcoming sums so many times. That is why I am teaching you. Okay, so this is one of them. Now let me talk about second, construction 11.2. What is that? That will also be useful in upcoming exercises. So let me teach you that construction 11.2. Construction 11.2 says bisector of a line segment. Bisector of
अ लाइन सेगमेंट। इससे पहले क्या था, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एक एंगल के कैसे दो हिस्से करने। नाउ व्हाट इज दिस, बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट, दिस विल आल्सो कम सो मेनी टाइम्स in your upcoming sums. As the name suggests, bisector means two equal parts of what, line segment. एक line segment होगा, उसके दो equal part करने, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, draw any line segment. ये ड्रॉ कर लिया, मान लीजिए कोई मेजरमेंट नहीं किया, चाहे तो कर सकते हैं आप 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, whatever you wish. So draw one line segment. Okay? अगर मेजरमेंट करना चाहें तो करें, नहीं चाहे तो बाद में लास्ट में करेंगे। So I have drawn one line segment. अब क्या करना है, इसके हमको दो इक्वल हिस्से करना है। जैसे वो एंगल के दो इक्वल हिस्से दिए थे, ऐसे इसके दो इक्वल हिस्से करने। दो इक्वल हिस्से कब होंगे, जब बीच में कोई एक पॉइंट आएगा। बीच में कोई एक पॉइंट आएगा तो ये पहला हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा ऐसे हो जाएगा। तो वो पॉइंट कैसे है, राउंडर से करना है। वैसे तो आप बोलोगे सर इट इज वेरी सिंपल, सपोज इट इज 10 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर को पॉइंट रख दो तो हो गए वो इक्वल हिस्से, वो तो हो गए। बट वी नीड टू कंस्ट्रक्ट इट, नॉट ड्रॉइंग इट। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉइंग एंड कंस्ट्रक्टिंग। ड्रॉइंग मीन्स सिंपली यू डू इट, ये 10 सेंटीमीटर है, हियर इज द 5 सेंटीमीटर मिडिल पॉइंट, हो गए दो हिस्से। कंस्ट्रक्शन मीन्स यू डू द सेम थिंग बट नॉट जस्ट बाय ऑर्डिनरी स्केल एंड पेंसिल, विद द यूज ऑफ कंपास बॉक्स, दैट मीन्स राउंडर। Okay, so you need to use your rounder and you need to do two parts. So what is the procedure? Procedure is something like this. Put your rounder here. Put your rounder here on point A. And then open the rounder. पिछली बार क्या था, मजा उतना ओपन करो। It is not like that this time. This time open it. कितना ओपन करना है, तो आधे से ज्यादा। अब आधा मेजरमेंट करने नहीं जाना है कि टोटल 10 है तो आधा 5 होता है। अगर वो मेजर करके वहीं 5 दिखा दिया तो हो गया ना काम पूरा। सो यू नीड टू डू इट रैंडमली। अंदाजा आ जाता है ना, दिस इज द लाइन सेगमेंट। इफ यू वांट टू टेक मोर देन हाफ तो अंदाजा आ जाता है, एक मुझे पता चला कि अच्छा ये लाइन सेगमेंट है, मुझे इसके मोर देन हाफ लेना है। तो राउंडर मैंने यहाँ रखा, राउंडर धीरे धीरे खोला मैंने यहाँ तक, तो मुझे चल गया पता कि हाँ ठीक है ये हो गया आधे से ज्यादा, आधा थोड़ा यहाँ आता है, आधे से ज्यादा हो गया। सो आधे से ज्यादा राउंडर खोले और ए पे रख के ऊपर एक आर्क लगाएं ऐसे, और नीचे भी रख के एक आर्क लगाएं। कहां पे, राउंडर कहां रखा था, ए पे, और कितना खोला था राउंडर को, मोर देन हाफ। किसका हाफ, ये जो लाइन सेगमेंट है उसके आधे से थोड़ा ज्यादा खोला, और ए पे रख के ऊपर आर्क लगाया, नीचे आर्क लगाया। अब वापस से उतना ही राउंडर खुला रखें, चेंज नहीं करें, डोंट चेंज इट। अब बी पे रखें और वापस से आर्क लगाएं ऊपर नीचे। तो बी पे रखा, एक आर्क लगा दिया, वही बी पे रखा, नीचे आर्क लगा दिया। तो यू विल फाइंड ऊपर भी दो आर्क टकराएंगे और नीचे भी दो आर्क टकराएंगे 100%। बस अब उनको स्केल से ज्वाइन कर लो। इनको स्केल से ज्वाइन करोगे and you will find something like this. And you will find something like this. तो ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट को सी नाम दे दे, तो देखिए दो इक्वल से हो गए, AC and CB. Now you can use your scale and measure. अगर ये 10 था टोटल AB, तो ये भी 5 आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा। सो ये तरीका है एक लाइन सेगमेंट के दो टुकड़े करने का। ओके, सबसे पहले क्या किया, यहाँ राउंडर रखा, आधे से ज्यादा राउंडर खोला, ऊपर आर्क लगाया, नीचे आर्क लगाया, फिर वापस से उतना ही खुला रख के बी पे राउंडर रखा, ऊपर नीचे आर्क लगाया। तो जो 4 आर्क लगाए उनको सिर्फ सीधी स्केल से ज्वाइन कर दिया, योर जॉब इज डन। So this is how you bisect and line segment it. Okay.
So this was construction 11.2, not exercise, example. Okay, so this will also come in exercises. एक्सरसाइज में बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस आएंगे, उनमें एक छोटा सा हिस्सा होगा अंदर ये, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसलिए इसका सीखना जरूरी। ऐसा ही एक और है, लास्ट वन, थर्ड वन, दैट ऑल्सो यू नीड टू लर्न बिफोर यू स्टार्ट एक्सरसाइज, एंड दैट इज, और वो है कंस्ट्रक्शन 11.3, कंस्ट्रक्ट 60 degree angle. Construct 60 degree angle. Now you will say, sir, what is new in this one? ये तो छोटे थे तब भी बना देते, प्रोटेक्टर रखो और 60 जहाँ आता है वहाँ ज्वाइन कर दो, हो गया 60 degree angle. But you are not supposed to draw or use protector. You need to draw 60 degree angle by with the help of what? Compass box. That means your ruler, your rounder. उसका इस्तेमाल करके 60 डिग्री बनाना है. It's kind of a magic. See, I am showing you a magic. कैसे बनता है. This is the most important because as soon as we'll start the first exercise, उसमें अलग अलग एंगल बनाने के आएंगे. 75 डिग्री, suppose 45 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, ऐसे अलग अलग एंगल्स बनाने के आएंगे. जैसे ये 60. Each and every angle जो भी पूछा हो पूरी एक्सरसाइज में, वो बनाने के लिए सबसे पहले बनाना पड़ेगा ये जो अभी हम सीखने जा रहे हैं 60 डिग्री. ये बनेगा, बाद में ही दूसरे बनेंगे. Till the time other will not be made. So you need to make 60 degree first and then other. So it is very important to learn this 60 degree. Okay? So see how I am doing. Draw one ray. एक रे बनाए. Something like this. Draw one ray. Okay? No measurement, nothing. Just a straight ray. Now keep your rounder here. Keep your rounder here. Open it randomly. No fixed measurements. Open it randomly. And draw an arc. यहाँ पे rounder रख के draw an arc. कितना भी खोला. No fixed measurement. और बहुत बड़ा मत खोल देना कि वो आर्क इस रे से बाहर ही निकल जाए. ओके, प्रॉपर मेजरमेंट, नो फिक्स मेजरमेंट बट प्रॉपर मेजरमेंट. तो यहाँ राउंडर रखा, प्रॉपर मेजरमेंट के साथ आर्क लगा दिया. अब उस आर्क ने जहां काटा, यहाँ पे राउंडर रखो और उतना ही खुला रखो जितना पहले रखा था. चेंज नहीं करना. ओके, डोंट चेंज इट. उतना ही रखो और एक और आर्क लगाओ ऐसे. और ये आर्क ऐसे लगाना है कि पिछला वाला जो बड़ा वाला आर्क है उसको ये कट करे. ओके, सो यहां राउंडर रखा और यहां दूसरा आर्क लगाया. तो इस पॉइंट्स को कुछ नाम दे दो. ये सी पॉइंट, ये बी पॉइंट मान लो, ये वाला पॉइंट. अब स्केल से इसको ज्वाइन कर लो, ए के साथ बी को स्केल से. तो एक एंगल बन गया पूरा ये. अब आप प्रोटेक्टर लेके मेजर करो कि ये कितना बना. हमने तो बनाने के टाइम पे सोचा नहीं था कितना एंगल बना रहे, बट नाउ यू मेजर इट. यूज योर प्रोटेक्टर एंड मेजर इट. यू विल फाइंड मैजिक. इट इज 60 डिग्री. सो विदाउट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग, अगर ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो ये अपने आप जो बनेगा, ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री ही होगा. 100%. चेक कर लीजिए अगर भी बना के. ओके, सो क्या की प्रोसेस हमने? सबसे पहले हमने एक आर्क लगाया. इस आर्क लगाने के बाद यहां स्टार्टिंग पॉइंट पे राउंडर रखा. राउंडर रखने के बाद राउंडर को मजा आया उतना खोला और एक आर्क लगाया, ये वाला बड़ा वाला. पूरा सर्कल मत बना देना, थोड़ा सा आर्क लगाया. फिर उस आर्क ने जहां काटा इस पॉइंट को सी नाम दे दिया. यहां राउंडर रखो और उतना ही खुला रखो जितना पहले था. और एक और आर्क लगाओ. राउंडर को चेंज नहीं करना. दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग. इतना ही राउंडर खुला रखो और एक और आर्क लगाओ. उस आर्क ने पहले वाले आर्क को जहां कट किया उस पॉइंट को कुछ नाम देके उसको वो इनिशियल पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दो एंड योर जॉब इज डन.
Okay, so 60 degree is done. So this is also very most important, I should say, most important. तो बन जाएगा अपने आप 60. सो अब तक हमने क्या सीखा इस वीडियो लेक्चर में? 3 चीजें सीखी. 1, कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल. कोई एक एंगल दिया हो, उसके 2 इक्वल टुकड़े कैसे करते हैं. दूसरा क्या सीखा? कोई एक लाइन सेगमेंट दिया हो, उसके 2 इक्वल टुकड़े कैसे करते हैं. और तीसरा क्या सीखा कि बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ राउंडर का इस्तेमाल करके 60 डिग्री एंगल कैसे बनाते हैं. ये 3 चीजें हमने सीखी, जो तीनों की तीनों दोनों एक्सरसाइजेस जो हमको करनी है उसमें बहुत ज्यादा बार यूज होंगी. पूरी बड़ी कंस्ट्रक्शन होगी, अलग अलग चीजें करनी होंगी, उसका 5-10% हिस्सा ये होंगी. इतने इंपॉर्टेंट है. और ये लास्ट वन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 60 डिग्री तो, क्योंकि बहुत सारे एंगल जो बनने वाले हैं, सारे जो मैंने कहा 120, ये 45, 90, 120, 180, एवरीथिंग स्टार्टिंग यहां से होगी 60 बना के. तो इतना इंपॉर्टेंट है. ओके, एक और बात बता दूं, वैसे अगली बार और डिटेल में बताऊंगा कि जब भी कोई कंस्ट्रक्शन बनाए तो साथ में स्टेप्स लिखने पड़ते हैं. जो आपने ड्रॉ किया वही सिर्फ शब्दों में लिखना होता है. वो जब एक्सरसाइज हम पहले शुरू करेंगे तो मैं आपको पहले सम में लिख के बताऊंगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं. ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहाँ स्टॉप करेंगे, वाइंड अप करेंगे. अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम ये 11.1 एक्सरसाइज अब शुरू करेंगे. ओके, तो आज का आपका होमवर्क रहेगा बस यही, वीडियो को देख के अपनी CW बुक के अंदर, क्लास वर्क बुक के अंदर ये 3 कंस्ट्रक्शन 11.1, कंस्ट्रक्शन 11.2, कंस्ट्रक्शन 11.3 टेक्स्ट बुक खोलिएगा. ये टाइटल मिलेंगे आपको ऐसे एक्सरसाइज से पहले, तो वो टाइटल लिखें और सिर्फ ड्राइंग करें अच्छे से. स्टेप्स यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है. एक्सरसाइज शुरू करेंगे तब स्टेप्स कैसे लिखे जाते हैं मैं आपको सिखाऊंगा. तो अभी सिर्फ 3 ड्राइंग आप ये कर लीजिएगा. चाहे तो अच्छे से इसको एक बार रफ में प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, ताकि जब हम एक्सरसाइज शुरू करें यू विल बी वेरी कंफर्टेबल. ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th में भी है, बोर्ड के ईयर में कंस्ट्रक्शंस. फाइन, सो वी आर वाइंडिंग अप टुडेस सेशन. Thank you so much for listening and learning from this session. Again, I'm reminding you, don't forget to subscribe our school channel. Okay? Thank you so much. Have a very good day. Take care of yourself and your whole family. And yes, don't go outside the home. Thank you.